quadratic equation. Quadratic equation. Quadratic equation. Here ax square plus bx plus c is equal 0. Ax square plus bx plus c is equal 0. And here a, b, c is a real number. Is a real number. Is a real number. That is mean ax square plus bx plus c is equal 0. और a, b, c अगर वास्तविक संख्या है, a, b, c अगर वास्तविक संख्या है और a not equal 0. So that is mean this is a x-axis equation. यानी कहने का मतलब ax square plus bx plus c is equal 0 और a, b, c यदि वास्तविक संख्या है, a, b, c वास्तविक संख्या है, तब जो x चर का समीकरण उसे हम क्या कहते हैं, x चर का समीकरण. यदि ax square plus bx plus c is equal 0 और a, b, c here a is equal 0 या a not equal 0, तो अगर a, b, c वास्तविक संख्या है उस वक्त इस तरह के समीकरण को हम x चर का समीकरण कहते हैं. Here ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c is equal 0. यहां अगर b is equal 0, here b is equal 0, ax square plus bx plus c is equal 0, and यहां here b is equal 0, mean we get equation is a ax square plus c is equal 0. ax square plus c is equal 0. Mean here ax square plus bx plus c is equal 0. This is equation and b is equal 0. So x square plus c is equal 0. Mean that is mean it's also called equation. Which one? Quadratic equation. This one x square plus c is equal 0, that is mean. This one also quadratic equation. यदि ax square plus bx plus c is equal 0 और यहाँ b की जो वैल्यू b is equal 0 यदि हो, तो मिलने वाला जो समीकरण है ax square plus c is equal 0, तो इसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं. ax square plus c is equal 0 यानी ये हम वर्ग समीकरण कह सकते हैं. ax square plus bx plus c is equal 0 and b is equal 0. Then we get ax square plus c is equal 0. Mean that is mean this is a quadratic equation. यह वर्ग समीकरण है. वही यदि हमारे पास ax square plus bx plus c is equal 0 and here c is equal 0. ax square plus bx plus c is equal 0 and here c is equal 0. Mean we get equation ax square plus bx is equal 0. यानी कहने का मतलब this is also called quadratic equation. ये भी हमारा quadratic equation है. यदि ax square plus bx plus c is equal 0 and c's value is 0, then ax square plus bx we get ax square plus bx is equal 0. That is mean it's also called quadratic equation. यानी इससे हम वर्ग समीकरण कह सकते हैं. and x square plus bx plus c is equal 0 and c is equal 0. c की वैल्यू c बराबर 0, उस वक्त ax square plus bx is equal 0. यह वर्ग समीकरण कहलाता है. वही अगर here b is equal 0, c is equal 0 and we get ax square is equal 0. कहने का मतलब अगर b is equal 0, c is equal 0, then ax square is equal 0. यानी यह वर्ग समीकरण है. ax square plus bx plus c, यहाँ यदि b is equal 0, c is equal 0, then we get ax square is equal 0. That is quadratic equation.
and here ax square plus bx plus c is equal 0, b is equal 0 and c is equal 0. Then we get ax square is equal 0 and this is a quadratic equation. यह वर्ग समीकरण है. ax square plus bx plus c is equal 0. I mean here quadratic equation. Quadratic equation. How to solve? How to solve? There are three types. There are three types. अब यह वर्ग समीकरण जो है उसे हल करने की तीन पद्धति होती है. एक अवयव पद्धति, that is called component method. Component method. Second, complete square. Now perfect square. Perfect square. पूर्ण वर्ग पद्धति. पूर्ण वर्ग पद्धति. And third one, सूत्र पद्धति, जिसे हम कहते हैं फार्मूला मेथड. quadratic equation how to solve? अगर quadratic equation हमें solve करना है तो there are three types. First one component method, another one perfect square method, and third one formula method. And here component method, that is mean अवयव पद्धति, and perfect square, that is called पूर्ण वर्ग पद्धति, and formula method, it's called सूत्र पद्धति. You know that अवयव पद्धति component method, another one perfect square, that is mean पूर्ण वर्ग पद्धति, and third one formula method, mean सूत्र पद्धति. So we will take now firstly अवयव पद्धति, that is called component method. अवयव पद्धति, that is called component method. And how to solve? X square minus 5x plus 6 is equal 0. X square minus 5x plus 6 is equal 0. Mean this question, this example solved by अवयव method, that is mean component method. Component method. X square minus 5x plus 6. So how to solve? It is the अवयव पद्धति, that is mean component method. So look here, x square minus 5x plus 6. Firstly, ax square, here a mean nothing. X square minus 5x plus 0, here nothing mean 1. Here nothing mean 1. Here always remember that ax square, here x square, here nothing mean 1. So x square minus 5x plus 6. X square minus 5x plus 6 mean here 6 हमें फैक्टर्स किसके निकालने हैं? 6 के. फैक्टर्स किसके निकालने हैं? 6 के. How to know? Mean here first one addition. Plus 6. How much? Firstly, remember that plus 6. X square minus 5x plus 6, here plus 6. Sign is most important here. Plus 6 and plus mean plus into plus and minus into minus. Mean plus into plus and minus into minus. प्लस के फार्मूला क्या है? यानी दोनों भी, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव. सो यह 6 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी प्लस 6 के. प्लस 6 ए हमें फैक्टर निकालने हैं, वो भी किस तरह? यानी यहाँ लुक हियर माइनस 5, जिसके फैक्टर कितने निकलने चाहिए? -5. यानी दैट इज मीन इन चिन्हों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. यानी जो भी आंसर आएगा उससे हमें आंसर क्या आना चाहिए? 6 के इस तरह फैक्टर निकालो जिनका एडिशन, 6 के इस तरह से फैक्टर निकालो जिनका एडिशन क्या आना चाहिए? -5. प्लस के इस तरह से फैक्टर निकालो जिसका एडिशन क्या आना चाहिए? -5. सो साइन इज प्लस प्लस और माइनस माइनस. So 6 mean 1 6 6 6 plus 1 7 mean not valid.
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, okay, 2 3 जा 6 plus 2 plus 3, 2 plus 3 5, 2 plus 3 5 mean 2 plus 3 that is mean 5, and here we know that minus 5 mean here 2 and 3 mean minus 5, so minus 2 minus 3, sign is minus minus, minus 2 and minus 3, that is mean here minus 2 minus 3 mean minus 5, and here x square, that is mean 2x and 3x, understand, 2x and 3x. Look again here, I mean x square minus 5x plus 6 is equal 0, so here 6 mean plus 6k, इस तरह से फैक्टर्स निकालो कि जिसका एडिशन क्या आना चाहिए माइनस पाई, जिसका एडिशन क्या आना चाहिए माइनस पाई, और एडिशन की साइन क्या है, या तो फिर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, सो हियर 6 के फैक्टर कुछ इस तरह से निकालो जिसका एडिशन माइनस 5 हो, यानी 1 6 जा 6, इनका एडिशन 7 आ रहा है, सो रॉन्ग, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 plus 3 5, yeah, but here x, so here put x, 2x and 3x mean 5x, but which one minus, so sign is take minus minus mean minus 2x and minus 3x, so अंडरस्टैंड दिस वन, 6 के हमने इस तरह से फैक्टर निकाले, सबसे पहले हमने इसको दिखा प्लस प्लस 6 के इस तरह से फैक्टर निकाले जिसका एडिशन हमें माइनस 5 होना चाहिए, सो 2 3 जा 6, 2 plus 3 5, but which one minus 2 minus 3, that is mean minus 5, so here mean x square and minus 5x की जगह minus 2x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal 0. क्या क्या हमने यहाँ जैसे 6 के इस तरह से फैक्टर निकाले जिसके minus 2x minus 3x mean minus 5x, so put here minus 5x like x square minus 2x minus 3x plus 6, समझ में आया, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया कि minus 2x and minus 3x mean here x square minus 5x हम इस तरह से लिखेंगे minus 2x minus 3x and then plus 6 is equal 0. यार minus 5 हमने minus 5 लिए क्या नहीं, क्योंकि minus 5 की जगह हमने लिखे उसके फैक्टर्स minus 2x minus 3x plus 6 is equal 0. x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal 0. Now take common, so select this one and this. x square minus 2x, x square minus 2x and minus 3x plus 6, हम इसमें से अभी इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कहने का मतलब यहां से हमने अगर दो ब्रैकेट है x square minus 2x and another one minus 3x plus 6 is equal 0, कहने का मतलब हम यहां कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इनमें से हम x क्या कॉमन निकलेगा x, और यहां बचा क्या फिर x माइनस 2, इसमें से हमने कॉमन क्या निकाला x, x स्क्वायर में से x, और ब्रैकेट में क्या बचा, अब एक ही x बचा x माइनस 2 एंड x ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रैकेट। अब यहाँ जैसे माइनस 3x है, यहाँ क्या है माइनस 3x प्लस 6 है, तो हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले साइन देखो क्या है माइनस, पहले साइन बाहर निकाल लो, माइनस साइन अगर हम बाहर निकालते तो यहाँ देखो 3 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब इन ब्रैकेट क्या बचा, हम अब यहाँ 3x में से 3 बाहर निकाला है माइनस साइन, ठीक है 3x में से हमने 3 को बाहर निकाला तो बचा क्या इन ब्रैकेट x, लेकिन यहाँ ध्यान दो आउट ऑफ ब्रैकेट क्या साइन है माइनस, आउट ऑफ ब्रैकेट क्या साइन है माइनस, सो हम इसे क्या लिखेंगे माइनस होने की वजह से जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है कि अगर आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस, यानी
यहाँ हमने -3 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इज इक्वल 0। समझ में आइए, हमने यहाँ 3 को कॉमन निकाला, अगर 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन है इसलिए अंदर का जो साइन वो चेंज हो गया, सो x as it is and 3 2 जा 6 है x minus 2। अब यहाँ देखो x minus 2 and x minus 2 they have two bracket is equal and same bracket, so यानी यहाँ कौन से ब्रैकेट में x minus 3 and x minus 2 ये दोनों भी कॉमन इसलिए एक ही वक्त लिखेंगे और इज इक्वल 0। समझ में आया, हमने क्या किया कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इसमें हमने x स्क्वायर माइनस 2x एक ब्रैकेट किया, यहाँ माइनस साइन है सो यहाँ 3x प्लस 2 ये एक ब्रैकेट में लिया। अब इसमें से हमने x को कॉमन निकाला, किसको कॉमन निकाला x को, देखो यहाँ x निकला तो यहाँ एक x बचा है, यहाँ 2 एज इट इज, यहाँ x आउट ऑफ ब्रैकेट है इसलिए यहाँ बचा x माइनस 2 एंड यहाँ कॉमन -3 सो यहाँ बचा x माइनस 2 इज इक्वल 0। सो हमारे पास मिला x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल 0। So here x minus 3 and x minus 2 is equal 0. So x minus 3 and x minus 2 is equal 0, that is mean here x minus 3 is equal 0 and x minus 2 is equal 0. So now here x minus 3 is equal 0 or x minus 2 इज इक्वल 0, यानी कहने का मतलब x इज इक्वल, अब यह -3 है तो ब्रैकेट यानी इज इक्वल के उधर जाएगा तो -3 दैट इज मीन 3 एंड हियर x minus 2 इज इक्वल 0 मीन x इज इक्वल +2 मीन हमें जो आंसर मिला वो क्या है, यानी 3 एंड 2 या 2 एंड 3, x इज इक्वल 3 एंड x इज इक्वल 2। समझ में आया, हमने क्या किया यहाँ x minus 3 is equal 0 and x minus 2 is equal 0, यानी कहने का मतलब x minus 3 is equal 0 और x minus 2 is equal 0 मीन कहने का मतलब x is equal 3। यहाँ देखो x minus 3 है यानी जैसे ही ब्रैकेट के उधर जाता है यानी इज इक्वल के उधर जा रहा है तो इसका साइन यानी यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो गया, यानी x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2, यानी कहने का मतलब हमें जो आंसर मिला वो है 3 एंड 2। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ये इसके और एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट हम फिर देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले हम इसके एक दो एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। सो अगर आशा करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। हमने पिछले पीरियड में लिया था कि इन्हें कंपोनेंट मेथड अवयव पद्धति। सो आज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल 0। हम इसको अवयव पद्धति से x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल 0। तो हमने पिछले पीरियड में देख रहे थे कि अवयव पद्धति यानी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 यानी हमें यहां क्या साइन है, प्लस का साइन। क्या दिख रहा है आपको, प्लस का। कहने का मतलब या साइन है प्लस का और हमें फैक्टर किसके निकालना है, 24 के, यानी 24 कौन से, प्लस 24। सो प्लस का साइन क्या है, सबसे पहले देखो प्लस 24, ठीक है। प्लस 24 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, प्लस 10। कितना आना चाहिए, प्लस 10। 24 के ऐसे फैक्टर निकालने या 24 के ऐसे अवयव निकालो कि जिसके यानी उसका गुणनखंड ऐसे निकालो कि 24 के
जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, +10, कितना होना चाहिए, +10। 24 के हमें इस तरह से फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, +10। सो नाउ स्टार्ट। कितना समझ में आया, हमने क्या किया, याद आया, ध्यान दो। 24 कौन से, पॉजिटिव, सो +24 यानी पॉजिटिव 24 के हमें इस तरह से फैक्टर निकालने हैं, या ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, ऐसे अवयव निकालने हैं जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, +10, जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, +10। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 12 24, 12 + 2, इनका एडिशन कितना आता है, 14, यानी हमें नहीं चाहिए। 12 2 24, लेकिन 12 + 2 14 हमें नहीं चाहिए। सो उसके बाद 3 8 3 + 8, हाउ मेनी, 11, हमें 11 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10। सो अनदर वन 6 यानी 4 4 1 4, 4 6 24, 4 6 24, एंड 4 + 6 10, 4 + 6 10, और हमें क्या चाहिए, +24 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन +10 हो, यानी +4 and +6, +4 and +6। सो हमें फैक्टर मिल गए कि यानी 24 के हमने ऐसे फैक्टर निकाले जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, 10x, और वो है 4 6 यानी प्लस। हमने देखा कि प्लस के साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, प्लस या माइनस। सो हमें यहाँ प्लस चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, 4 and 6, यानी दोनों भी पॉजिटिव ही चाहिए। सो प्लस के साइन क्या है, एक तो प्लस या फिर माइनस। सो फैक्टर क्या निकले, 4 and 6, 4 6 24, एंड उनका एडिशन कितना आ रहा है, 10, जो हमें चाहिए, +10, ठीक है, यानी 6 4 24 एंड एडिशन इज 10। सो यहाँ क्या है, x, सो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, x and x, तो x, यानी 24 के फैक्टर 4 and 6, 4x + 6x। सो नाउ पुट हियर, इतना समझ में आया, क्या हमने x² + 10x + 24, इसके हमने क्या निकाले, 24 के फैक्टर निकाले। क्या बेटा, 24 के फैक्टर निकाले कुछ इस तरीके से कि जिसका एडिशन के साइन क्या है, एक तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो 24 के हमने फैक्टर कैसे निकाले, 4 6 24, यानी जिसका एडिशन कितना है, 10x, यानी 4 6 24। सो जिसका एडिशन है 10, यानी यहाँ x है, यहाँ इसलिए हमने x पुट किए, समझ गए, यानी कहने का मतलब 4x and 6x। सो हम 4x + 6x यानी कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, चलो। सो आगे तो हम क्या करेंगे कि हमें फैक्टर कौन से मिले हैं, 4x and 6x, और दोनों भी प्लस। सो यहाँ पुट करेंगे x², अब 10 की जगह +4x and +6x, that is mean 10x, x² + 4x + 6x, 10x + 24 is equal 0। So x² as it is, 10x की जगह 4x + 6x + 24 is equal 0। ये हो गया, हमने फैक्टर इस तरह से हमने इसके निकाले। सो अभी देखो यहाँ क्या दिख रहा है, x² + 4x and 6x + 24। सो इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। हमारे पास है x² + 4x and 6x + 24। अब यहाँ दो में से और यहाँ दो में से, इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। आप समझ रहे हो, x² + 4x and 6x + 24। अब x² + 4x, दैट इज मीन यहाँ कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ देखो x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, कॉमन निकालेंगे x। सो इन ब्रैकेट क्या बचा, 8x, x and x plus x already out of bracket, so here only 4, यानी कहने का मतलब x and x plus 4, then sign is plus। यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, सो 6 के टेबल में 24 आता है, यानी यहाँ कॉमन निकालेंगे हम 6। सो इन ब्रैकेट x plus 6 1 6, 6 4 24 is equal 0। समझ में आ रहा है, हमने यहां से निकाला x कॉमन, तो हमारे पास बचा x + 4, देन यहाँ +6 को कॉमन निकालो तो यहाँ बचा x + 4।
दैट इज मीन आप देख पा रहे हो यहाँ x plus 4 and x plus 4 both are same bracket, so take one time यानी x plus 4 and another one x plus 6 is equal 0. Understand this one? X and in bracket x plus 4 then plus 6 common निकाला x plus 4 is equal 0. So here x plus 4 and x plus 6 is equal 0. ये हमें दो ब्रैकेट मिले x plus 4 and x plus 4 टू टाइम्स है इसलिए हमने एक ही टाइम लिया x plus 4 दोनों कॉमन इसलिए and x plus 6 is equal 0. Now x plus 4 and x plus 6 is equal 0. That means x plus 4 is equal 0. Yeah, or x plus 6 is equal 0. समझ रहा है? x plus 4 is equal 0 or x plus 6 is equal 0. Understand this one? X plus 4. So now x plus 4 is equal 0 or x plus 6 is equal 0. Now यहां से हम x plus 4 is equal 0, that is mean x as it is यहां plus 4 है यानी is equal यहां plus 4 है आउट ऑफ ब्रैकेट ये नहीं यहां is equal के उधर जाएगा तो क्या होगा x plus 4 है इधर जाएगा तो minus 4 यहां प्लस है तो इधर क्या होगा minus 4 x is equal minus 4 या और here x plus 6 is equal 0. X plus 6 is equal 0. That is mean here x as it is equal here plus 6 है that is mean here minus 6. Understand this one? X plus 4 is equal 0. So x plus 4 is equal 0 or x plus 6 is equal 0. So x that is mean as it is x is equal here plus 4 that is mean minus 4 or x plus 6 is equal 0 that is mean x is equal minus 6. So that's root is minus 4 and minus 6. This is the answer. Understand one? So minus 4 and minus 6 is equal roots. ये है जो minus 4 and minus 6. Understand this one? Quadratic equation component method. Today's problem is x square minus 84 is equal 0. X square minus 84 is equal 0. How to solve it? अब देखो प्रॉब्लम हमारे पास है x square minus 84 is equal 0. तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे? x square minus 84 is equal 0. अब यहाँ देखो x square minus 84 that is mean x square हम इसे भी क्या करेंगे स्क्वायर में लिखेंगे. अब स्क्वायर में तो लिख नहीं सकते तो फिर रूट 84 अभी क्या हो गया रूट 84 x square माइनस इन रूट 84. अब यहां स्क्वायर है इसलिए हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल 0. समझ में हमने क्या किया? सबसे पहले x square minus root 84 x square minus root 84 x square minus root 84. फिर से एक बार देखो x square minus 84 is equal 0. इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? x square as it is minus 84 so स्क्वायर में तो इसको हम स्क्वायर 84 किसका स्क्वायर किया नहीं so इसलिए हम इसको रूट 84 करेंगे. रूट में 84 जिसका स्क्वायर निकलता नहीं उसको हम रूट में डालते हैं. ठीक है तो x स्क्वायर माइनस 84 रूट 84 तो अभी यहाँ स्क्वायर तो इसको भी हम क्या करेंगे ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल 0. देखो इस तरह का की कंडीशन जब क्रिएट हो x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल 0 हमने क्या किया x स्क्वायर माइनस रूट 84. अब यहाँ स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया. नहीं अब यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देखो x स्क्वायर माइनस इन रूट 84 स्क्वायर दैट इज मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन a माइनस b या a प्लस b a माइनस b यही फार्मूला हमें यहाँ पुट करना है.
सही में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 84 स्क्वायर, कहने का मतलब ये हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? वन टाइम ए प्लस बी एंड अनदर वन ए माइनस बी। a square minus b square, x square minus root 84 square. So a square minus b square means a plus b, a minus b. Understand this one? अगर ये समझ में आया तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या x स्क्वायर माइनस रूट 84, दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर ले लिया, और यहाँ हमें जो फार्मूला मिल रहा है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज मीन a प्लस b एंड a माइनस b। सो इसी तरह से हमें इसे पुट करना है। समझ में आएगा? अंडरस्टैंड दिस वन? वेरी सिंपल, कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर अब यहाँ किस तरह से लिखेंगे? x प्लस रूट 84, x प्लस रूट 84 एंड अनदर वन x माइनस रूट 84। ये हो गया हमें दो ब्रैकेट इज इक्वल 0। क्या क्या हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन x प्लस रूट 84 एंड x माइनस रूट 84। ये समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, ऐसी संख्या लेंगे जिसका कोई एक संख्या किसी न किसी का स्क्वायर हो, जैसे x प्लस इन रूट 84 यानी 4 1 जा 4, 21 4 जा 84, यानी 4 क्या हुआ, 4 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। उसी तरह से इज इक्वल 0 एंड और सेम वन x माइनस रूट 84 मीन 4 1 जा 4 एंड 4 21 जा 84, that means equal 0। समझ में आया? सो अभी यहाँ देखो, यानी x as it is प्लस यहाँ क्या है, इन रूट में 4 है, यानी 4 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 2 का। सो 2 हम बाहर निकालेंगे और फिर बचा क्या हमारे पास, इन रूट में 21। समझ में आया? x प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। सो इन रूट 21 as it is इक्वल 0। वही यहाँ क्या कर रहे हैं, x माइनस रूट में क्या है 4, यानी दैट इज मीन 2 एंड रूट में आएगा 21 इज इक्वल 0। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ x प्लस 2 इन रूट 21 या और x माइनस 2 इन रूट 21 इज इक्वल 0। अभी तो कि हमें दोनों भी संख्या x लेके लिख रही है, हम इसको किस तरह से लिखेंगे ये समझ में आया क्या? हमने क्या किया, 4 को 4 किसका, 2 का स्क्वायर है और इन रूट में 21 इज इक्वल 0। उसी तरह से x माइनस 2 और रूट में 21 इज इक्वल 0। सो x प्लस 2 रूट 21 और x माइनस 2 रूट 21। सो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यानी x प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2 रूट 21, ये हो गया इसका आंसर। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी इसका आंसर है x प्लस माइनस 2 इन रूट 21। समझ में आया? काफी सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें। काफी सिंपल है। हमने इस संख्या में इस तरह से इसका स्क्वायर निकाला है कि इसमें से कोई एक संख्या किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 4 मल्टीपल 21, 4 21 जा 84। सो हमने क्या किया, 4 किसका है, 2 का, यानी इन रूट में 21 बचा इज इक्वल 0 और x माइनस 2 इन रूट 21 इज इक्वल 0, यानी हमारे पास बचा x प्लस माइनस 2 इन रूट 21। यह है हमारा आंसर। अंडरस्टैंड?